پاکستان نے ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ نور زمان نے فائنل میں مصر کے کریم الترکی کو 3-2 سے ہرا دیا۔ نور زمان نے پہلے 2 سیٹ ہارنے کے بعد کم بیک کرتے ہوئے 3 سیٹ جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر دیا۔ بڑی فتح پر آپ دیدہ ہو گئے، کہتے ہیں محنت کا صلہ مل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس پہنچ گئے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کا منسک کے وکٹری اسکوائر کا دورہ، مانیمنٹ پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم بیلاروس کی سیاسی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں میں اہم معاہدوں پر دستخط متوقع۔ کیا ملٹری کورٹس میں زیادہ سزائیں ہوتی ہیں، اس لیے کیسز جاتے ہیں؟ عام عدالتوں میں ٹرائل کیوں نہیں چلتے؟ ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم کیوں نہیں ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں سیولز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف کیس میں سوالات۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے، کنٹونمنٹ کے اندر شاپنگ مالز بن گئے، کسی دن مجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو میں زبردستی داخل ہوں تو کیا میرا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، شاپنگ مالز کو ممنوعہ علاقہ تو قرار نہیں دیا جاتا۔ کراچی میں 6 سے 7 کینٹ ایریاز ہیں، وہاں ایسا تو نہیں ہے مرکزی شاہراہوں کو بھی ممنوعہ قرار دیا گیا ہو۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے 5 سے 6 ججز کلفٹن کینٹ کے رہائشی ہیں، وہاں تو ممنوعہ علاقہ نوٹیفائڈ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی مسلسل تبدیلیوں کے معاملے پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز احساق نے سوالات اٹھا دیے۔ سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ کیس منتقلی پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے۔ قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ایسے انتظامی سائٹ پر آرڈر کا اختیار نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سنگل بینچ کا کیس اٹھا کے ڈویژن بینچ میں لگا دیں۔ میرا اصولی موقف ہے، کوئی کیس ایسے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل سے مکالمے میں کہا جا کر ان کو بتائیں اس معاملے پر دوبارہ غور کریں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات سے کیا لینا دینا؟ ان کے پیٹ میں کیوں درد رہتا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں پارٹی بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں متحد ہے، گرینڈ الائنس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ حامد رضا کا کہنا ہے پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اختلافات جلد ختم ہو جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر میر صادق عمرانی اور دیگر نے اختر مینگل کو بلوچ قوم کا دشمن اور بلوچستان کا ناسور قرار دے دیا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا یہ دہشت گردوں کا سرغنہ اور بین الاقوامی قوتوں کا ایجنٹ ہے، سامراج کے اشارے پر بلوچستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اختر مینگل اپنی زبان قابو میں رکھیں ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ علی مدد جتک نے کہا یہ دہشت گردوں کی بی ٹیم ہے، بانی پی ٹی آئی کو بلیک میل کر کے 15 ارب روپے لیے، 4 دن سے خواتین کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ ہمارے منہ مت کھلواؤ، ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ کراچی میں گزشتہ روز ڈمپر جلانے کے واقعات حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئے۔ ڈی آئی جی عرفان بلوچ کا انکشاف۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے بتایا 10 منٹ میں 8 سے 10 ڈمپر عام لوگ نہیں جلا سکتے۔ نامعلوم افراد اب نامعلوم نہیں رہے، ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ 19 افراد کو گرفتار کر کے 5 مقدمات درج کیے ہیں۔ افواہوں، سوشل میڈیا پر جھوٹی معلومات نے جلتی پر تیلی کا کام کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے خلاف محکمہ داخلہ سندھ اداروں سے مل کر کارروائی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی اجلاس میں فیصلہ۔ بریفنگ میں بتایا گیا ایف آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ اتھارٹی قائم کی۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی کام روکنا اتھارٹی کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا صوبائی حکومت کی مؤثر پالیسی سے دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا۔ دہشت گردی، منشیات اور دیگر سنگین جرائم کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں۔ آپریشن کی وجہ سے کسی شہری کو کوئی پریشانی نہیں۔ گورنر سنگھ کامران ٹسوری کہتے ہیں آرمی چیف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اگر ایئر ایشیا یا ملیشین حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اس کی بڑی وجہ سپہ سالار جنرل ناصر منیر کا معیشت کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان کو نئی نئی خوشخبریاں مل رہی ہیں، میں آرمی چیف کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں جس نے میرے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ معیشت میں بہتری آ رہی ہو اور صحت کی حفاظت ہو رہی ہو تو مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے آرمی چیف سمیت پوری افواج کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ گنے کے پھوک سے پیدا ہونے والی بجلی سستی ہونے کا امکان، 9 بگاس پاور پلانٹ نے ٹیرف میں کمی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست پر 16 اپریل کو نیپرا میں سماعت ہوگی۔ بگاس پاور پلانٹس نے ٹیرف کی ایندھن کی لاگت پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ سندھ کا ڈیجیٹلائزیشن کی جانب ایک اور قدم، آن لائن فٹنس سرٹیفکیٹس کے اجرا کا آغاز کر دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی کے 2 نئے فٹنس سینٹر میں گاڑیوں کی جانچ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ جدید آلات سے ان مراکز پر ماہر تکنیکی ٹیمیں گاڑیوں کا معائنہ کرتی ہیں۔
कुल 63 गाड़ियों का मुआयना किया गया, 30 को फिटनेस सर्टिफिकेट दिए गए। ऑनलाइन सिस्टम से रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स का इजरा शफाफ हो चुका। कम टैरिफ की मौतली, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। S&P 9.5%, नस्तक 12.2%, डाउ जोन्स 2500 पॉइंट्स बढ़ गया। जापान का निकाई इंडेक्स 8.3%, जनूबी कोरिया के कॉप्से इंडेक्स में 5.5% और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3.7% इजाफा। चीन के शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.5% की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इधर बेहतरी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,16,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। अमेरिका का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया, बाकी ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। सदर ट्रंप का कहना है टैरिफ में वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ाने की वजह बीजिंग का अदम एहतराम का रवैया है। चीनी क़यादत को ताहाल नहीं मालूम कि वो इस मामले को कैसे संभाले। सदर ट्रंप ने इस तासुर की तरदीद की कि वो टैरिफ पर पीछे हट गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को तिजारती उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है नए टैरिफ से जाहिर है अमेरिका बैनुल-अक़वामी तिजारती कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा। अमेरिका ने रूस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज बेलारूस रवाना होंगे। बेलारूसी सदर से मुलाकात में 2 तरफ़ा अमूर पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वफ़द में शामिल होंगी। दीगर वज़रा और आला हुकाम भी हमरा होंगे। आला सतह राब्तों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त होगी। आटे की कीमत तय है लेकिन चीनी की कीमत तय नहीं। चीनी की कीमत 60 रुपए तक बढ़ा दी गई, आटे की क्यों नहीं बढ़ा रहे? किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद खोकर कहते हैं 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का निर्ख ना दिया तो एहतजाज करेंगे। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर खवातीन और बच्चों समेत हजारों किसान जमा होंगे। एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि पाकिस्तान में कई माह से एक्स को बंद किया गया है। एक्स बंदिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म वज़रा खुद एक्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन आवाम के लिए उस पर पाबंदी है। जस्टिस नईम अनवर और जस्टिस फजल सुबहान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्क के बालाई इलाकों में बादलों का राज। मरी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लोअर दीर में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच पर हमले का मुकदमा मीठादर थाने में दर्ज। इक़दाम कत्ल, पीका एक्ट, वकील पर तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल। मुद्दई आमिर नवाज के मुताबिक इतवार को दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ बयान दिया। अपने ऑफिस से निकला तो तिब्बत सेंटर के करीब मोटरसाइकिल सवार ने रोकने की कोशिश की। आई चुंदरीगढ़ रोड पर गाड़ी से उतरा तो 5 नामालूम अफराद ने हमला किया। मुल्जिमान मेरा फोन, घड़ी और गाड़ी की चाबी साथ ले गए। बाद में मालूम हुआ किरण कामरान और उसके भाई कामरान और मुस्तसिल ने हमला कराया है। कोयटा के मस्तोंग रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। सरफराज बुगटी कहते हैं शोहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे करदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। बन्नू में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 1 शख्स जामहाक, 6 अफराद जख्मी। ओकाड़ा में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस के मुताबिक 6 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक और 3 फरार हो गए। डाकू शहरी शाहिद से नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाह से सहाफ़ी अल्लाडीनो शर की तशद्दुदज़दा लाश मिली। मकतूल सहाफ़ी को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। लाश खेत में से मिली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी है। 2 मुल्जिमान ने ख्वाजा सरा को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। मज़ाहिमत पर 2 ख्वाजा सरा जख्मी। मुल्जिमान असलहा और आला कत्ल छोड़कर फरार। पुलिस का कहना है वाक़या दरीना दुश्मनी का लगता है।
नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। घोटकी के करीब मुसाफिर कोच उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। झंग बाईपास पर आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया, 2 अफराद जाँ बहक। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ डील के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी ना हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फौज की जरूरत पड़ी तो हमारे पास फौज मौजूद है, इसराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने चीनी शहरियों को गंवार कह दिया। अमेरिकी टीवी पर इंटरव्यू में कहा, बैनुल-अक़वामी मईशत ने अमेरिका को समझ क्या रखा है। अमेरिका बहुत ज्यादा कर्ज लेकर वो चीजें खरीदे जो दूसरे ममालिक हमारे लिए बनाते हैं। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सके जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने जेडी वेंस के बयान को जाहिलाना करार देते हुए कहा, अमेरिकी नायब सदर के तबसरे हैरान कुन और अफसोसनाक है। नेतन्याहू हुकूमत की मौशी पॉलिसियों से महंगाई उरूज पर पहुंच गई। लाखों इसराइली खानदान खैराती इदारों के खाने पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन माइक कोहन अपनी हुकूमत पर फट पड़े। कहा, हुकूमती गफलत के सबब लाखों इसराइलियों को एक वक्त का खाना भी दस्तयाब नहीं। इसराइली खैराती इदारे का कहना है इसराइल में हर 3 खानदानों में से एक इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। PSL शुरू, PSL 10 के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। IG पंजाब का कहना है पुरअमन और महफूज माहौल में मैचेस का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। मजमूई तौर पर 21,000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। लाहौर में 8,000 से जायद, रावलपिंडी में 5,000 और मुल्तान में 8,000 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। कराची किंग्स ने हसन अली को PSL 10 के लिए नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। मेगा इवेंट में हसन अली डेविड वार्नर के नायब कप्तान होंगे। टीम ओनर सलमान इकबाल कहते हैं हसन अली में वो जज्बा है जो कराची किंग्स की पहचान है। हम चाहते हैं वो कप्तान डेविड वार्नर के साथ मिलकर टीम को अगले दर्जे पर ले जाएं। हम सबकी नजरें एक ही हदफ पर हैं, वो है PSL ट्रॉफी जीतना। PSL में शरीक तमाम टीमों के कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़म। रिजवान कहते हैं लीग कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। बाबर आजम ने कहा, ऑन पेपर तमाम टीमें मजबूत हैं, शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। किंग्स के नायब कप्तान हसन अली ने कहा, कोशिश होगी फैंस को भरपूर एंटरटेन करें। शाहीन आफरीदी और सऊद शकील ने कहा, 10वां साल है, सबको PSL को सपोर्ट करना चाहिए। बड़े नाम फिर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज के हमसफर बन गए। कराची किंग्स और इम्तियाज सुपर मार्केट के रिश्ते को 8 साल मुकम्मल। इम्तियाज सुपर मार्केट ने प्लैटिनम रिटेल पार्टनर स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखा। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज ने भी सीजन 10 के लिए किंग्स से नाता जोड़ लिया। आना एंड बाटला इंडस्ट्री के CEO और ऑनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। GFS डेवलपमेंट्स और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी मजबूत शराकतदारी का सफर आगे बढ़ा दिया। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन, मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून, रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तजज़िये, करेंगे जानदार तबसरे ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। कल से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पे।